میں مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبہ سندھ کے امور پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز اسلام آباد سے رانا مقبول سے۔ جی رانا مقبول، بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر اور صوبہ سندھ کے موضوع پر گفتگو ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، صوبہ سندھ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے متعدد تجاویز وفاق کو دی ہیں، جس پر وفاق کو عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور وفاق کی بجٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے وژن کے مطابق اور جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ ہوا اس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کو مکمل طور پر صوبہ سندھ میں وفاق کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، متعدد سڑکیں اور سیوریج سسٹم پر جو وفاق کے زیر اہتمام تھے، اس پر بھی تفصیلی جو گفتگو وزیر اعلیٰ سندھ نے کی ہے، اس پر بھی وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر صوبہ سندھ کو جو ہے بجٹ تھا وہ ریلیز کرنے کے احکامات بھی جاری کیا ہے۔ مکمل طور پر پاک کی طرف سے صوبہ سندھ حکومت کو جو بھی تمام تر وسائل ہیں وہ بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ جی بہت شکریہ رانا مقبول اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت موسمیاتی تبدیلی سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کی مانسون میں کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری جبکہ فوری عمل درآمد شروع کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت منصوبہ بندی اور NDMA صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مربوط منصوبہ سازی کریں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت موسمیاتی تبدیلی سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کی مانسون میں کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے بھی تیاری کی ہدایت، جبکہ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری دی گئی، فوری عمل درآمد شروع کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت منصوبہ بندی اور NDMA صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مربوط منصوبہ سازی کریں۔ خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سیاست عوام کے دکھ اور درد کا مقدمہ ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں گزشتہ 4 سیلاب میں 4700 لوگ مر چکے ہیں۔ اتنے لوگ تو جنگوں میں بھی نہیں مرتے۔ 2022 سیلاب کے نقصانات 9% GDP سے زیادہ تھے۔ اگر 9% GDP کا نقصان ہو جائے تو یہ سیاست ہے یا نہیں؟ یہ ریمارک دیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیسی سیاست ہوئی؟ سیاست تو عوام کا مقدمہ ہے، سیاست تو عوام کے دکھ اور درد کا مقدمہ ہے، اور یہ تمام صحافت اور سیاست جو کی جاتی ہے یہ اس مقدمے کو سامنے لانے کے لیے، اس پہ تکرار کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پچھلے جو سیلاب، آخری سیلاب جو 2022 کا آیا ہے، اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ملک کی 9% GDP کے برابر تھے۔ ایک سیلاب پچھلے 2010 کے بعد 4 آ چکے ہیں، 5 آ چکے ہیں، ابھی یہ جو ایک گزرا ہے جس کی ابھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، لیکن 2022 کے سیلاب کے جو نقصانات تھے وہ 9% GDP سے زیادہ تھے، جس میں 4.5% ڈائریکٹ، یعنی 2-3% ہماری GDP بڑھتی ہے، اور 4.5% GDP کے ڈائریکٹ نقصان اور 4.5% GDP کا انڈائریکٹ نقصان، 9% GDP کا نقصان ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں بھائی یہ سیاست ہے یا نہیں؟ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کا دورہ مکمل، جبکہ وطن واپس روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم نے 17 تا 18 نومبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل کی میٹنگ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ اسحاق ڈار نے میزبان ملک روس کی گرم جوشی، مہمان نوازی اور میٹنگ کے کامیاب انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ ماسکو میں پاکستان کے سفارت خانے اور وزارت خارجہ کی ٹیموں کی جانب سے دورے کی سہولت کاری پر قدردانی کا اظہار بھی سامنے آ چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کا دورہ مکمل ہو چکا ہے، وطن واپس روانہ ہو گئے، جبکہ نائب وزیر اعظم نے 17 تا 18 نومبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل کی میٹنگ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسحاق ڈار نے میزبان ملک روس کی گرم جوشی، مہمان نوازی اور میٹنگ کے کامیاب انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ ماسکو میں پاکستان کے سفارتکاروں اور وزارت خارجہ کی ٹیموں کی جانب سے دورے کی سہولت کاری پر بھی قدردانی کا اظہار کیا۔
मजीद आपको बताएंगे नायब वजीर आजम इसहाक डार की कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी से गैर रस्मी मुलाकात। मास्को में मुलाकात SCO सरबराहान हुकूमत इजलास के मौके पर हुई। दफ्तर खारजा का कहना था कि नायब वजीर आजम इसहाक डार और शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई ताउन की तरजीहात पर तबादला ख्याल भी किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात हुई, जबकि दो तरफा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफीर की इस्लामाबाद में दहशत गर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस सामने आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों की लीगल स्टेट्स का देरीना मसला हल किया गया, जबकि बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफीर का मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफीर की इस्लामाबाद में दहशत गर्द हमले की मजम्मत सामने आई, जबकि जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों की लीगल स्टेट्स का देरीना मसला हल किया गया। बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफीर का मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया। और अब बताएंगे आपको अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चले वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की चीनी सफीर से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर की चीनी सफीर को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 की खुसूसी दावत भी दी। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की मुआशी तरक्की के लिए हम अपना ताउन जारी रखेंगे। चीनी कंपनियां MCC CNOC पाकिस्तान में कनी शोबे में काम कर रही है। हम अपने मुताल्लिका इदारों के सरबराहों को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत की तरगीब देंगे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि वफाकी आईनी अदालत को मुकदमात मुंतकली का सिलसिला जारी। जेर इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए 22,000 से जायद केसेस सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिए गए। जराये का कहना है कि आर्टिकल 184/3 के मुकदमात और नजर सानी दरख्वास्तें आईनी अदालत को मुंतकिल की गई। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 56,000 से जायद मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी है। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए 22,000 से जायद केसेस सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिए गए। जराये का कहना है कि आर्टिकल 184/3 के मुकदमात और नजर सानी दरख्वास्तें आईनी अदालत को मुंतकिल की गई। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 56,000 से जायद मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। किसी का बड़ा ख्वाब पूरा करेंगे आप। शौकत खानम, कराची। वाइस चांसलर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि DGISPR के भारत के हवाले से बयान को दुनिया ने सच साबित होते देखा है, जहां अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय टेक्नोलॉजी तक को शिकस्त दी। तलबा ने मिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक सवालात के मुदल्लिल जवाबात देने पर DGISPR का शुक्रिया भी अदा किया। बच्चे हमारे
नजरियाती तौर पर रखवाले हैं हमारे, ये आइडियोलॉजिकली ये हमारे रखवाले हैं। आई कैन से कि आप जितनी एफर्ट कर रहे हैं सर, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मेरी यूथ के ऊपर आया। आज हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान से ऑडियंस थी, जिसमें हमारे पास हर प्रोविंस से, हर तहसील से स्टूडेंट्स थे, जिनके माइंड में एक गलत पर्सपेक्टिव बना हुआ था हमारी आर्मी के लिए, जिनको मिस कम्युनिकेट किया गया था, मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आज DGISPR ने आकर उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को टैकल किया। यहाँ पर हर स्टूडेंट था जिसके पास मिस इन्फॉर्मेशन थी, उनको इन्होंने आकर क्लियर किया। दैट वाज वेरी ग्रेट सेशन। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद समवन हु नोज द ट्रुथ इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं वो झूठी खबरें, वो जो झूठी प्रोपेगेंडाज होती हैं, हम उन पर यकीन कर जाते हैं। बिकॉज हम आजकल की जो जनरेशन है, दैट जनरेशन इज वेरी एग्रेसिव। दैट जनरेशन जो सुनती है, जो उनके कानों पर बात पड़ती है, दे जस्ट एक्ट ऑन दैट। जो प्रोपेगेंडाज देख रहे हैं उन पर यकीन कर रहे हैं। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रॉस चेक द डेटा, क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज रियल और नॉट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। Today the session, I must say, it was an eye opener for most of the people, since the propaganda that is going on, it was a need, especially a need in the dynamics of this university, because as VC Sahab has mentioned today, we have students from every tehsil of this country. In Pakistan Army, we can find persons from all across the Pakistan, from all even villages of Pakistan. It's truly Pakistan. There is no Balochistan, no KPK, no Punjab. It is Pakistan. Pakistan Army is Pakistan. Sessions like these, they are so beneficial for the society because I as a youth can understand this problem that youth nowadays is more focused and more interested towards social media. Sessions like these are so important and beneficial for the society because they helped us to clarify the misconceptions that had crept into the minds of the youth. और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला, जबकि क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी और फुटबॉल के मुकाबले स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलोज भी पेश किए। उम्मीद स्पेशल स्कूल पिशावर, आशियाना स्पेशल एजुकेशन स्कूल कोहाट, FG स्कूल पिशावर, APS पिशावर और बैतुल यनामा स्कूल के स्पेशल बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कोर कमांडर 11 कोर ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। खेलों के इख्तिताम पर बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। आपको बताएं कि पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। मजीद आपको बताएंगे, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध भर में निज़ाम अपग्रेड कर रहा है। सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन को बाअख्तियार करने के लिए अहम फैसले कर रहे हैं। खवातीन के लिए पिंक बसें चलाएं, अब BRT में भी शामिल होंगी। हम ऑरेंज लाइन BRT में भी पिंक बस शुरू करेंगे। अगले हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी पहुंच रही हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त आप ग्रीन लाइन BRT में मौजूद हैं और इस वक्त महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। हमने हुकूमत सिंध ने यह फैसला किया है कि जिस तरीके से हम खवातीन के लिए, खवातीन को एम्पावर करने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले कर रहे हैं, उसमें हमने जिस तरीके से पिंक बसेस खवातीन के लिए चलाई, अब जितनी भी BRTs होंगी सिंध भर में, उनमें उन तमाम BRTs में खवातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं और शुरू की जा चुकी हैं। जिस वक्त आप मौजूद हैं तो पीछे आपको खवातीन के लिए BRT में ये पिंक बस नजर आई होगी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान में किसी भी BRT में खवातीन के लिए मखसूस बसें हों। इससे पहले हर बस में खवातीन बैठ ज़रूर सकती हैं, लेकिन हमने कहा कि ये जिस तरह हमने खवातीन के लिए मखसूस एक बसें चलाई हुई हैं, तो हम क्यों ना खवातीन के लिए BRTs में भी खुसूसी बसें चलाएं। तो ये पहली पाकिस्तान की ये पहली BRT में ये पिंक बसेस जो हैं उसकी शुरुआत कल से की जा चुकी है। हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। हमारी MD साहबा मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि जी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है और हम ये और
اور اب آپ کو بتائیں گے کراچی میں خواتین کے لیے بڑی خوشخبری. آپ کو بتاتے چلے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے گرین لائن بس سروس پر خصوصی پنک بس کا افتتاح کر دیا. اس سروس میں مقصد خواتین مسافروں کو محفوظ اور آرام دہ سفر فراہم کرنا ہے. مزید تفصیلات جاننے کے لیے حفیظ انصاری اس وقت موجود ہیں. جی حفیظ بتائیے گا. خواتین کے لیے ایک خوشخبری ہے اور خوشخبری سفر کے حوالے سے. اور سفر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرین لائن جو ہے ایک کامیاب ترین ایسا بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہے جو کہ کراچی میں سب سے زیادہ اگر پسند کیا جاتا ہے شہریوں کی جانب سے گرین لائن پسند کیا جاتا ہے. لیکن خواتین کے لیے اب یہ جگہ جو ہے انتہائی کم رہ جاتی ہے جو کہ گرین لائن میں سفر کرتی ہے خواتین. اس کے لیے اب بی آر ٹی میں خواتین کے لیے خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ اب پنک بس سروس بھی گرین لائن پر جو ہے چلے گی. اس کا آغاز ہو گیا ہے. ٹرانسپورٹ کے وزیر شرجیل انعام میمن نے اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا اور خواتین اب بہتر سہولیات کے ساتھ آزادی کے ساتھ جو ہے پنک بس سروس میں سفر کر سکیں گی. اور پنک بس سروس میں صرف خواتین ہی خواتین ہوں گی. یوں ایک محفوظ انداز میں جو ہے پنک بس سروس میں خواتین سفر کر سکیں گے. اور یہ روٹ وہی گرین لائن کا ہوگا جو کہ ہے نمائش تک کا سوجانی سے نمائش تک اور نمائش سے سوجانی تک. یقیناً جو ہے خواتین کے لیے ایک اچھی اور بڑی خوشخبری ہے, خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو کہ جاب پر جاتی ہیں, سروس پر جاتی ہیں اور ان کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا تھا گرین لائن میں. گرین لائن میں خواتین ویسے بھی سفر کر سکیں گے لیکن اس مخصوص پنک بس سروس میں بھی سفر کر سکیں گے. شرجیل انعام میمن کا آج یہ کہنا تھا کہ بی آر ٹی میں پہلا ایسا موقع ہے پاکستان کے اندر کہ بی آر ٹی میں جو ہے پنک بس سروس خواتین کے لیے شروع کی جا رہی ہے. اور یہ تمام بی آر ٹی کے روڈ وہ ریڈ لائن کے ہوں یا دیگر ہوں ان تمام روٹ پر جو ہے پنک بس سروس شروع کی جائے گی. اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواتین کے لیے جو اسکوٹنی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ جاری ہے. خواتین جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مخصوص افراد کے لیے بھی ایسی بائک جو ہے اس انداز میں ترتیب دی جا رہی ہے کہ مخصوص افراد اسپیشل افراد بھی جو ہے بائک کا استعمال جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے مفت ملنے پر کر سکیں گے. تو یہ خوشخبریاں تھیں جو آج شرجیل انعام میمن نے نمائش پر گرین لائن اسٹاف پر جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. یوں اب پنک بس سروس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو لوگ ہیں گرین لائن کے ساتھ ساتھ اب خواتین خاص طور پر جو ہے پنک بس سروس میں سفر کر سکیں گی. اور اب یہ پنک بس سروس روڈ پر ہی نہیں بلکہ بی آر ٹی کے گرین لائن اور دیگر جو سفری سہولت جہاں مہیا کی جاتی ہیں وہاں بھی حاصل ہوگی. جی شکریہ حفیظ انصاری ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر شامل کریں کہ سندھ کابینہ کا اجلاس طلب. اجلاس کل وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں تمام صوبائی وزراء کو حاضری یقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی. اور اب بلیٹن میں بات کریں کہ محکمہ تعلیم سندھ کے ملازمین کے تبادلوں اور تقرریوں کے لیے تجاویز بھی بھیجنے کا معاملہ. سندھ کے وزیر تعلیم نے بغیر جانچ پڑتال کے تبادلوں کی تجاویز سیکریٹری ایجوکیشن کو ارسال کرنے پر سخت نوٹس لے لیا. سیکریٹری ایجوکیشن کے دفتر کو غیر ضروری تبادلوں کی درخواستیں بھجوانے پر صوبائی وزیر کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا. انفرادی تبادلوں کی تجاویز پر پابندی عائد کر دی گئی بلکہ بغیر جواز تبادلے اور تقرری کی سفارشات بھی ارسال نہ کرنے کی ہدایت کی گئی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تمام سفارشات مناسب اسکروٹنی کے بعد ہی بھیجنے کا حکم سامنے آیا ہے. مزید آپ کو بتائیں گے سرکاری اسکولوں میں موومنٹ رجسٹر نہ رکھنے پر ڈائریکٹریٹ اسکول ایجوکیشن سکھر کا سخت نوٹس. موومنٹ رجسٹر نہ رکھنے سے طلبہ اساتذہ کی سرگرمیوں پر کنٹرول نہ ہونے کا انکشاف. سرکولر کے مطابق اساتذہ اور طلبہ کی اسکول اوقات میں آمد و رفت پر کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں. اسکول چھوڑنے کی وجہ وقت اور تاریخ موومنٹ رجسٹر میں لازمی درج کی جائے. تمام اسکولوں کو اسکول گیٹ پر ڈیوٹی افسر تعینات کرنے کی ہدایت دے دی. طالبات کو والدین کی تحریری درخواست کے بغیر اسکول سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی.
सिंध के महकमा तालीम ने 2 रोज़ा तरबियती सेशन के लिए CMOs और सुपरटेंडेंट्स की नामजदगी लिस्ट जारी कर दी। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दीगर अजला के अफसरान शामिल। खवातीन CMOs और असिस्टेंट्स भी शरीक होंगे। चीफ मॉनिटरिंग अफसरान और अमले की 2 रोज़ा तरबियत 20 और 21 नवंबर को होगी। तरबियती सेशन अकाउंटेंट जनरल सिंध ऑडिट एंड अकाउंट्स कॉम्प्लेक्स में होगी, जबकि तरबियत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जबकि डायरेक्टरेट के हवाले से बताना है कि डायरेक्टरेट जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने चोरी शुदा गाड़ी के चालान से मुतालिक वजाहत भी जारी कर दी। कहा कि चोरी शुदा गाड़ी का चालान पुराना और इब्तिदाई दिनों का है। मुस्तकबिल में ऐसी गलत फहमी न होने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की पॉइंटेशन जारी रखे हुए है। चालान से चोरी शुदा गाड़ियों की बरवक्त निशानदही में मदद मिलती है। मजीद आपको बताएंगे, यहाँ बोल रहे हैं करे कोई भरे कोई। गाड़ियां दूसरे सूबों की ई चालान कराची वालों को, दूसरे सूबों की हू बहू नंबर की गाड़ियों के भारी जुर्माने कराची वालों को मिलने लगे। आपको बताते चले, कराची में चोरी शुदा कार के मालिक को ई चालान 10,000 रुपए का भारी जुर्माना क्यों हुआ? चोरी हुई गाड़ी को जुर्माने की तहकीकात के दौरान एक अहम इंकशाफ सामने आ गया। चोरी शुदा गाड़ी मेहरान कार थी। ई चालान सुजुकी ऑल्टो कार का हुआ। तहकीकात में इंकशाफ। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में लियारी गैंग वॉर एक बार फिर सर उठाने लगी। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम के बाहर नामालूम मुलजिम की फायरिंग का मामला, जबकि वाक़े का मुकदमा जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जवाद बेग नामी शोरूम मालिक की मुद्दयत में दर्ज किया गया, जबकि भत्ताखोरी, इक़दाम कत्ल, फायरिंग और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल कर ली गई। मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम अहमद अली मक्सी और ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से बताया। फायरिंग के बाद भाई के नंबर पर 50 लाख रुपए भत्ता तलब करने की कॉल और मैसेज भी मौसूल हुए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, कराची में लियारी गैंग वॉर एक बार फिर सर उठाने लगी। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम के बाहर नामालूम मुलजिम की फायरिंग का मामला, वाक़े का मुकदमा जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जवाद बेग नामी शोरूम मालिक की मुद्दयत में दर्ज किया गया। भत्ताखोरी, इक़दाम कत्ल, फायरिंग और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल कर ली गई। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ उसामा शाह से। उसामा शाह, अपडेट कीजिएगा। गुज़िश्ता कुछ माह से देखने में आ रहा है कराची में लियारी गैंग वार एक बार फिर सर उठाने लगी है। कराची में रोजाना की बुनियाद पर लियारी गैंग वार से मुंसलिक वारदातें देखने में सामने आ रही है। गुज़िश्ता माह से बदतर तलबी की वाक़ियात में इजाफा नुमाया नजर आने लगा है। कल के रोज न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम के बाहर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग का वाक़या पेश आया था। वाक़े का मुकदमा जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुकदमा शोरूम मालिक जवाद बेग की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जबकि मुद्दई का मजीद कहना था कि हमला जान से मारने की नोयत से किया गया था, मगर फायरिंग से सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुकदमे में मुद्दई का कहना है कि मुसल्लह हमलावर ने सुजुकी आल्टो कार पर 2 फायर किए और फायर ड्राइवर साइड पर लगे। मुद्दई ने मुकदमे के बयान में बताया कि फायरिंग के बाद मेरे भाई के नंबर पर 50 लाख भत्ता तलब करने की कॉल और मैसेज मौसूल हुए, जबकि मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम अहमद अली मक्सी और ताल्लुक लियारी गैंग वार से बताया है। जबकि मुकदमे में भत्ताखोरी, इक़दाम कत्ल, फायरिंग और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल कर दी गई, जिसके खिलाफ अहमद नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसको कानूनी कार्रवाई के लिए अभी तो तफ्तीश हुकाम के हवाले कर दिए गए। तफ्तीश हुकाम इस हवाले से मजीद पेशरफ सामने लाएंगे। जी, अपडेट करने के लिए
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ गवादर में मौसर कार्रवाई देखने में आई। पलेरी में 1400 किलो चर्स, 150 किलो मेथ आइस, 8 किलो हीरोइन और 6.5 किलो अफीम बरामद कर ली गई। पेशोगान बसो गैप पर स्नैप चेकिंग के दौरान 476 किलो आला चर्स बरामद कर ली गई। मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत तकरीबन 134.43 मिलियन डॉलर है। मुनशियात समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल किए जाने का खदशा जाहिर किया गया। मजीद आपको बताएंगे शाह फैसल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मनशियात फरोश और मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार कर लिए गए। मनशियात फरोशों की शनाख्त सिद्दीक और इदरीस के नाम से हुई। चर्स बरामद कर ली गई। दूसरी कार्रवाई में अरशद और रहमान नामी मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार। चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक चारों मुल्जिमान आदी मुजरिम हैं। इन पर पहले भी कई मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। मलिर सिटी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की शनाख्त फाहद बालाज और शाहजहां के नामों से हुई। असलहा बरामद। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान मलिर में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी मुलविस हैं। मजीद आपको बताएंगे मोमनाबाद पुलिस का अल-फतह कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला। एक जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त दानिश और सिराज अहमद के नामों से हुई। गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन्स और रकम भी बरामद कर ली गई। और अब खबर शामिल करें कि ईदगाह पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग डकैतों से मुकाबला हुआ। मुख्तियार और असगर उर्फ अज्जू नामी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि फायरिंग का तबादला बलोच पार्क के पास पेश आया। मुल्जिमान दीगर साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करते थे। मुल्जिमान की निशानदही पर 12 अदद चेचिस नंबर भी बरामद कर लिए गए। मजीद आपको बताएंगे जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं। SDPO सऊदाबाद की निगरानी में शीशा गली में ऑपरेशन किया गया। घरों, दुकानों और होटल्स की तलाशी ली गई। 35 से ज्यादा अशखास की बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए तस्दीक की गई। मजीद आपको बताएंगे कराची के ओल्ड सिटी एरिया में फायरिंग का वाकया पेश आया। शाहबेग लेन में रहायशी सुबहान जाबाहक हो गया। सिविल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का वाकया लियारी अफशानी गली में पेश आया। कलाकोट पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सिंध पुलिस के लेजेंड अफसर जबकि फखरे कराची चौधरी असलम की धूम सरहद पार भी पहुंच गई। जबकि भारत ने मैदान अमल में नाकामी के बाद अब कामयाबी के ख्वाब फिल्मों में पूरे करने का ठेका उठा लिया। मौरका हक में मुंह की खाने के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अब एक बार फिर वही पुराना फार्मूला आजमाने लगी। रियल हीरो को फिल्म में विलन बना डाला। मशहूर अदाकार संजय दत्त एक नई फिल्म में SP चौधरी असलम का किरदार निभाते नजर आएंगे। आपको बताते चलें कि सिंध पुलिस के लीजेंड अफसर फखरे कराची चौधरी असलम की धूम सरहद पार भी मच गई। भारत ने मैदान अमल में नाकामी के बाद अब कामयाबी के ख्वाब फिल्मों में पूरे करने का ठेका उठा लिया। मौरका हक में मुंह की खाने के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अब एक बार फिर वही पुराना फार्मूला आजमाने लगी। रियल हीरो को फिल्म में विलन बना डाला। मशहूर अदाकार संजय दत्त एक नई फिल्म में SP चौधरी असलम का किरदार निभाते नजर आएंगे।
और अब बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। आपको बताते चले, सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 7,900 रुपए के इजाफे से 4,31,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,773 रुपए इजाफे के साथ 3,69,994 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 177 रुपए इजाफे से 5,422 रुपए मुकर्रर। आपको बताते चलें, सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ। फी तोला सोने की कीमत 7,900 रुपए के इजाफे से 4,31,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,773 रुपए इजाफे के साथ 3,69,994 रुपए का हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहसन से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। सोने की कीमतों में जो है आज फिर एक मरतबा इजाफा हो गया है और 7,000 रुपए फी तोला के हिसाब से जो है वो इजाफा हुआ है। तकरीबन 7,900 रुपए फी तोला के हिसाब से इजाफा हुआ है। और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि 2 दिन जो है सोने के रेट में कमी होती है मामूली, और फिर उसके बाद जो है सोने का रेट जो है फिर आर्मी सतह पर ऊपर चला जाता है। उसकी वजह यही होती है कि मार्केट के अंदर जो इंटरनेशनल तौर पर जो है वो सोने की खरीदारी की तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। और चूंकि डॉलर की पे थोड़ा सा प्रेशर है और चूंकि ब्रिक्स की जानिब से भी अपनी करेंसी लाने का जो एक वादा किया गया है, इसकी वजह से डॉलर पर थोड़ा सा जो है दबाव है। और क्रिप्टो की भी जो है मार्केट वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गई है, काफ़ी से ज़्यादा जो है वो तबाही का शिकार है, जिसकी वजह से सोने की तरफ लोगों का रुझान जो है बढ़ रहा है। और सोने की खरीदारी इंटरनेशनल तौर पर भी जो है वो काफ़ी से ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह आज भी $79 जो है फी ऑunce जो है वो आलमी मार्केट में भी सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है और तकरीबन $4,092 जो है ऑunce पे चली गई है और इंटरनेशनल मार्केट। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में भी इसका प्रेशर पड़ता है और 7,900 फी तोला के हिसाब से इजाफा हुआ है और 4,31,000 रुपए पे जो है इस वक्त फी तोला सोने की रेट जो है वो पहुंच चुके हैं। जी शुक्रिया बिलाल अहसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।